السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم يوم الثلث 19 ذی القعدہ 1445 ہجری۔ آج منگل کا دن ہے، مئی کی 28 تاریخ 2024۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج سورہ حاقہ آیت نمبر 37 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یاکلہ، نہیں کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون، سوائے خطا کاروں کے۔ یعنی اس سے پہلے آیتوں میں جو کہا گیا نا کہ جہنم میں جہنمیوں کو جو سو غسلین ملے گا، یعنی پیپ اور اس طریقے کی چیزیں، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سوائے خطا کاروں کے اور کوئی نہیں کھائے گا اس کو۔ وَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قول ہے بزرگ رسول کا۔ یعنی جیسے کہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، کسی چیز کی قسم کھا کر کوئی بڑی بات کو کہنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے دو آیتوں میں جو اللہ نے قسم کھایا کہ بے شک میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جس کو تم دیکھتے ہو، یعنی تمہارے نگاہیں جن چیزوں کو دیکھتی ہے جو اللہ نے پیدا کیا، ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور ان چیزوں کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں یقیناً یہ جو سو یہ قرآن جو ہے یہ کلام ہے رسول کریم کا، یعنی وہ بزرگ رسول کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا قول، قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم ہے جو تم ایمان رکھتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ قول کاہن کا، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کے طرف سے، وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی یہ کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے ان کو، تو کوئی کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ اپنے خود کھڑ لیا ہے، کوئی کہتے تھے کہ جو سو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کر رہے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ تو دیوانے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ جو سو کاہن ہے، اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن جو ہے رسول کریم رسول کا، یعنی بزرگ رسول کا کلام ہے۔ اب اس میں یہاں پہ کلام ہے سے مراد وہ تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو آخری میں جو کہا تنزیل من رب العالمین، نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کے طرف سے۔ تو حقیقت میں قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سناتے تھے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ ایک تلاوت کیا ہوا کلام ہے رسول کے طرف سے، اور یہ جو سو کوئی شاعر کا شاعری نہیں ہے، بہت ہی تھوڑا ہے جو تم ایمان رکھتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کاہن کی بات ہے، بہت ہی کم ہے جو تم غور کرتے ہو یا نصیحت پکڑتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کے طرف سے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر وہ بنا لاتے ہمارے اوپر بعض الاقاویل، بعض کوئی اقوال، لَأَخَذْنَا مِنْهُ واخذنا منہ، اور ہم پکڑ لیتے اسے بالیمین، دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اسے کاٹ ڈالتے اس کی گردن کی رگ کو، یعنی رگ کو۔ وما منکم من احد، تو نہیں ہے تم میں سے کوئی، انہو حاجزین، اس سے جو روکنے والا۔ انہ لتذکرۃ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی ان آیتوں میں، پوری آیتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن جو نازل کیا ہے اپنے طرف سے، اس کی شان اور اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بالفرض اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے، اپنی خواہش سے کوئی چیز
اس میں ملا لیتے تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے والا ہے اس کو بھی یہاں پر بتا دے رہے ہیں۔ یعنی اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر ذرا سی بھی کوئی ملاوٹ اور کوئی چیز اس میں داخل نہیں کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تو پہلے تو کہہ دیا کہ نہ تو یہ ایک شاعر کا کلام ہے، نہ تو یہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کوئی اور احوال کو ملا لیتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوتا، ہم جو سو ان کو ان کے دائیں ہاتھ سے ہم ان کو پکڑ لیتے۔ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ کبھی یہ کلام فلاں کا ہے، یہ شاعر سنا دیتا ہے، وہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق بیان کر دی۔ پھر کہا اس کے جو لوگ جو الزام لگاتے تھے اس کا جواب دیتے ہوئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے اس میں کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتے یا کوئی اور بات کو داخل کرنے کی کوشش کرتے تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم ان کے گردن کی رگ کو کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی نہیں ہوتا جو اس سے ہمیں روکنے والا ہوتا۔ اور یقیناً یہ تو ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کے اندر کچھ ہیر پھیر کی جائے اور ہم خاموش ہو جائیں یا ہم اس کو جو سو دیکھتے رہ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ذرا سا بھی اس میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش ہوتی تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو روکتے۔ مطلب کیا ہے، پوری طاقت کے ساتھ ہم روک دیتے، اور اس کے سزا کے طور پر ہم ان کی گردن کی رگ کو ہی کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوتا۔ مطلب اتنا سخت اللہ تعالیٰ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی کلام کے اندر نہ تو کمی کی گئی ہے، نہ تو جو سو کوئی اضافہ کیا گیا ہے، نہ ہی اس کا کوئی اختیار ہے۔ اور یہ کہ جو سو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں لے لیتا، پکڑ لیتا، اور تم میں سے کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ حقیقت میں قرآن جو ہے پورا کا پورا نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں جو مشرکین اور کفار جو یہ کہتے تھے کہ یہ تو بولے نبی کا کلام ہے، اور کبھی کہتے کہ جو سو اس میں سے کچھ اس کو بدل دو، یا اس کے اندر کچھ ہیر پھیر کر دو، یا کچھ اس کے اندر سے کچھ کمی زیادتی کر دو، اس طریقے کے مطالبے کرتے تھے۔ تو حقیقت کیا ہے، قرآن کے اندر ایسے بہت سارے سورے اور بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ناراضگی کا اظہار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ اور جیسے سورہ تحریم کی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، شروعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ تو اس طریقے کی ایسی کتنی ہی آیتیں ہیں جو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا کہ اس میں کچھ رد و بدل کر سکتے، کچھ نکالتے یا کچھ اضافہ کرتے، تو ایسی آیتوں کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس میں سے نکال دیتے، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک پڑھے جانے والا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں بالکل نہیں تھا، بلکہ جب مشرکین اس طریقے سے کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اس کے اندر رتی برابر کا بھی کوئی ہیر پھیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کوئی رتی برابر بھی ہیر پھیر کروں۔ یہ تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے میں اسی کو پڑھ کے سناتا ہوں تمہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے جو کلام ہے، اس کی جو اللہ نے حفاظت کی ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل اور کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ اس سے پہلی کتابیں جو تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو اس کے نزول ہونے کے بعد اور وہ انبیاء اور رسول کے جانے کے بعد ان کی قوموں کے اندر بہت سارے ہیر پھیر اور بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی۔ جیسے کہ تورات اور انجیل جو آج دنیا میں ہے، اس کے اندر اگرچہ کہ اللہ کا کلام تو کچھ ہے لیکن بہت سارا اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ لیکن اس قرآن کا یہ معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے کہ نہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس میں کوئی ہیر پھیر کی ہے، نہ کوئی اور کر سکا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اور اللہ ہی نے جو سو جیسے کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو نہ صرف اس وقت میں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ یہ کیونکہ اس کے بعد کوئی اور قرآن اور کوئی اور کتاب آنے والی نہیں تھی، کوئی اور نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ آخری کلام ہے اور یہ آخری امت ہے۔ تو لہٰذا اس امت کا، اس قرآن کو اللہ نے حفاظت کیا
ताकि ये इसके अंदर कोई हेर बदल ना हो। व इन्ना लनालम, और बेशक हम जानते हैं, अन्ना मिनकुम मुकज्जिबीन, तुम में से बेशक तुम में से झुटलाने वाले हैं, यानी मुशरिकीन कुफार में से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतने सारे कुरान के बारे में ये आयतें बयान करने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन तुम में से बहुत सारे झुटलाने वाले हैं। व इन्नहु लहसरतुन, और बेशक ये एक हसरत है, अलल काफिरीन, काफिरों पर, यानी ये कुरान काफिरों के लिए एक हसरत का जरिया है। वो कैसे कि दुनिया में उन्होंने इस कुरान पर ईमान नहीं ले आया, तो कल क़यामत में जब उन्हें सज़ा मिलेगी, उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, उस वक्त में वो यकीनन हसरत करेंगे कि काश हमने कुरान पर अमल किया होता, काश हमने कुरान पर ईमान लाया होता। और जब वो ईमान वालों को देखेंगे कि जो लोग ईमान लाए थे इस कुरान पर, उनके दर्जात जो बुलंद हुए हैं, उनको जन्नतें मिली हैं, तो उस तरीके से भी उनके लिए ये हसरत का जरिया बनेगा। व इन्नहु लहक़्क़ुल यकीन, और बेशक ये यकीनी हक है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस आप पाकीज़गी बयान कीजिए अपने रब के नाम के साथ जो बड़ा अजमत वाला है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ठीक है, मुशरिकीन और कुफ़ार जो करते हैं करने ते रहने दें, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तस्बीह बयान कीजिए, पाकीज़गी बयान कीजिए अपने रब के नाम के साथ जो कि बड़ा अजमत वाला है। तो यहाँ पर जो सो सूरे हाक़ा ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह हम अब अगली सूरत शुरू करते हैं जो कि सूरे मारिज है। इसका सूरा नंबर कुरान में 70 है और नुज़ूल के एतबार से 79 है, 79 है, और इसमें 44 आयतें हैं, 44 आयतें हैं, और ये भी मक्की सूरत है, और इसके अंदर 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअला साइलुन, सवाल किया सवाल करने वाले ने, भी अज़ाबिन वाक़िन, उस अजाब के बारे में जो वाक़े होने वाला है। यानी सवाल करने वाले ने उस अजाब के बारे में सवाल किया जो कि वाक़े होने वाला है। लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, लैसा लहू दाफ़िउन, नहीं है उससे कोई दिफा करने वाला, मिन अल्लाही, अल्लाह के तरफ से, ज़िल मारिज, जो कि दर्जों वाला है, सीढ़ियों वाला या दर्जों वाला है। यानी किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया उस अजाब के बारे में जो कि नाजिल होने वाला है, वाक़े होने वाला है काफिरों के लिए, जिससे बचने की कोई मौका नहीं है, यानी जिससे बचाने का कोई तरीक़ा नहीं है, और वो अल्लाह के तरफ से है जो कि दर्जत वाला है। तो इस तरीके से यानी ख़ास तौर पे मुशरिकीन मक्का में से किसी ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था उस अजाब के बारे में जो वाक़े होने वाला है या क़यामत के बारे में, तो उसी का अल्लाह ताला जवाब देते हुए कह रहे हैं कि एक सवाल करने वाले ने एक सवाल कर लिया उस अजाब के बारे में जो कि वाक़े होने वाला है, जो आकर रहने वाला है। वो किन के लिए? काफिरों के लिए होगा, और इससे बचने की कोई सूरत नहीं होगी, इससे दिफा का कोई तरीक़ा नहीं होगा, और ये नाजिल हो रहा होगा अल्लाह के तरफ से जो कि सीढ़ियों वाला या दर्जात वाला है। तारजुल मलाइकतु, उसके तरफ चढ़ते हैं फरिश्ते, व रूह, और रूह, यानी फरिश्तों में ही रूह, रूह से मुराद यहाँ पर रूहुल अमीन है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो वहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके तरफ, अल्लाह के तरफ चढ़ते हैं फरिश्ते, और रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम इलेही, उसके तरफ, फी यौमिन, एक दिन में, ऐसे दिन में, काना मिक़दारुहु, जिसकी मिक़दार है, क़म्सीना अल्फ़ सनतिन, 50,000 साल। यानी उस अल्लाह के तरफ मलाइका और जिब्रील अलैहिस्सलाम चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मिक़दार है 50,000 साल। फज़बिर, बस आप सब्र कीजिए, सब्रन जमीला, सब्र जमील। यानी अब यहाँ पर जो आयतों के अंदर अल्लाह ताला अपनी कुदरत का बयान कर रहे हैं कि जो सो वो अल्लाह जिसने जो सो जो सीढ़ियों वाला या दर्जात वाला है, उसने जो सो अज़ाब को नाजिल करने वाला है, और अल्लाह के तरफ फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम चढ़ते हैं ऐसे एक दिन में जिसकी मिक़दार है 50,000 साल। इससे क्या मुराद है, इसके बारे में मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ तफसीरें किया है। कोई कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा जिसमें जो सो
काफिरों के लिए वो ऐसा ही भारी और इतना लंबा होगा जैसे कि दुनिया में 50,000 साल के बराबर हो, और मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए ये तो बहुत आसान होगा। या फिर ये है कि जो सो ये बहरहाल उसके और मुख्तलिफ जो सो रिवायतें की गई हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी कुदरत का बयान कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए, सब्र जमील। यानी ये मुशरिकीन और कुफार जो कुछ आपको ताने देते हैं, ईजा पहुंचाते हैं, आपके लिए बुरा भला कहते हैं, बस आप इसके ऊपर सब्र जमील कीजिए, अच्छी तरीके से सब्र कीजिए। इन्नहुम यरौना हो बईदा, बेशक वो उसे दूर देखते हैं, वह नरा हो करीबा, और हम उसे बहुत करीब देखते हैं। किस चीज को? उसी अजाब को जिसके बारे में वो सवाल करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मुशरिकीन उस अजाब को बहुत दूर देखते हैं, जबकि हम उसे बहुत करीब देखते हैं। मतलब क्या है कि ये मुशरिकीन को उस पर ईमान नहीं है, ईमान नहीं होने की वजह से वो उसको जो सो जैसे कि होगा नहीं होगा इस तरीके से शक शुबे में पड़े हुए हैं, और उसको सोचते हैं कि ये तो बहुत दूर की चीज है, जबकि ये हमारे लिए बहुत करीब है। यौमा तकूनु समाओ कल महल, जिस दिन हो जाएगा आसमान जैसे कि पिघले हुए तांबे की तरह। यानी जो क़यामत जो बर्पा होगी उसके बारे में उसके अहवाल कुछ अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि उस दिन जैसे कि आसमान पिघले हुए तांबे के जैसे हो जाएगा, बिल्कुल सुर्ख, और ऐसे जैसे कि पिघला हुआ तांबा हो। तकूनुल जिबालु कल अहन, और होंगे उस दिन हो जाएंगे पहाड़ जैसे कि रुई के गालों के बराबर। यानी दुनिया में तो ये पहाड़ इतने ऊंचे और इतने बड़े और इतने मजबूत और इतने वजनदार है, कल क़यामत में उनका हाल क्या होगा? रुई के गालों के जैसा। जैसे दुनिया में अगर धुनकी हुई रुई का कोई गाला अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो कैसे वो उसकी कोई वक़्त नहीं होती है, वो हवा में उड़ रहा होता है। तो कल क़यामत के दिन ये पहाड़ जो इतने बड़े बड़े पहाड़ है उनकी हालत भी ऐसे ही होगी जैसे कि रुई का गाला है, धुनकी हुई रुई का गाला। उसी तरीके से कल हम पढ़ चुके थे कि उस दिन एक ही चोट के अंदर अल्लाह ताला पहाड़ों को भी और जो सो जमीन को भी रेजा रेजा कर देगा। तो ये है कि क़यामत जब बर्पा होगी तो उस दिन दुनिया की जो बड़ी बड़ी मखलूक़ात है उनकी भी कोई वक़्त नहीं होगी, उन सबको तहस नहस कर दिया जाएगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और नहीं पूछेगा कोई दोस्त किसी दोस्त को। यु युबस युबस्सरूनहुम, हालांकि वो एक दूसरे को देख रहे होंगे। युवद्दुल मुजरिमो, ख्वाहिश करेंगे, चाहेंगे मुजरिम लोग लो युफ्तदी, कि काश फिदिये में दे दे, मिन अजाबी, अजाब के मुकाबले में, यौमा इज़िन, इस दिन, बनीन, औलाद को, बेटों को। यानी वहां पर हालत क्या होगी? क़यामत के दिन की हालत को अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को देख रहे होंगे, और काफिर ख्वाहिश करेंगे कि वो फिदिये में दे दे अजाब से बचने के लिए, अगरचे कि अपने बेटे ही क्यों ना हो, वह साहिबती ही व आखी, और अपनी बीवियों को और अपने भाइयों को, वो फजीलती ही अल्लती तू ई, और वो कुंबे कबीले जिन्होंने इसे जगा दिया था, वमन फिल अर्ज़ि जमीअन, और तमाम के तमाम जो कुछ जमीन में है, सुम्मा युनज्जी, फिर वो इससे बचा लिया जाए या बच जाए। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा लतग़ा, बेशक वो तो है दहकती हुई आग। देखें, ये कहा जा रहा है कि कल क़यामत में मुशरिकीन और कुफ़ार की ख्वाहिश क्या होगी? एक तो वहां पर कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछ कर तक नहीं देखेगा, हालांकि जबकि वो एक दूसरे को देख रहे होंगे। ये क्यों होगा? हर एक अपनी अपनी फिक्र में होगा, अपनी अपनी परेशानी में होगा, किसी को कुछ नहीं सोच रही होगी कि किसी दोस्त की खैर खैरियत पूछ सके। और यहाँ तक के जो कुफ़ार है वो चाहेंगे कि जहन्नम के अजाब से बचने के लिए फिदिये के तौर पर, यानी फिदिया क्या है कि किसी चीज से बचने के लिए उसका जो जुर्माना होता है वो देना। तो दुनिया में तो इंसान कभी, जैसे हज वगैरह में भी कहा जाता है कि अगर कोई गलती वगैरह हो जाए तो इंसान फिदिया देकर उसका कफ़ारा अदा कर सकता है। उसी तरीके से कोई बीमार और कमज़ोर इंसान है जो रोज़े नहीं रख सका रमज़ान के, तो उसके बदले में फिदिया देने की उसको इजाज़त है। तो इस तरीके से दुनिया में तो मामला है। तो कल क़यामत में काफिर भी ख्वाहिश करेंगे कि फिदिया देकर वो अजाब से बच सके,
चाहे अपने बेटों को ही कुर्बान करना पड़े, अपने बेटों को फिदिया देकर अगर अजाब से बच सकते हैं तो देना चाहेंगे। उसी तरीके से अपने बीवियों को और अपने भाइयों को और अपने कुंबे कबीले को जिसने उन्हें पनाह दिया था, और यहाँ तक कि जो कुछ है ज़मीन में सब कुछ देना चाहेंगे और इससे बचना चाहेंगे। क्योंकि जब अजाब को देख लेंगे, उसके हौलनाकियों को देख लेंगे, तो दुनिया की हर चीज उसके पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे और चाहेंगे कि सब कुछ कुर्बान कर दें लेकिन इस अजाब से बच सकें। लेकिन क्या मुमकिन होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला करें कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा लतग़ा, बेशक वो तो एक दहकती हुई आग है। तो दुनिया में तो अल्लाह ताला ने ऐसी बड़ी बड़ी कोई कुर्बानियां नहीं मांगा था जहन्नम की आग से बचने के लिए। कल क़यामत में जब जहन्नम की आग को देख लेंगे तो उस वक्त में तो ख्वाहिश करेंगे कि दुनिया की हर चीज को कुर्बान कर दें जहन्नम से बचने के लिए। लेकिन दुनिया में तो अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बड़ी बड़ी कुर्बानियां तो नहीं मांगा था कि तुम ये भी कुर्बान कर दो, ये भी कर दो, और तुमको जो सो ये सब कुछ करोगे तो ही जन्नत में जा पाओगे। बल्कि दुनिया में तो अल्लाह ने बहुत ही थोड़ी सी चीजें मांगी थी। वो ये है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और ये कि अल्लाह ने जो करने के अहकामात दिए हैं उन अहकामात पर बजा ले आओ, और जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाओ। इतना आसान है दीन, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और जो इबादत के तरीके हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके बताए हुए तरीके पर इत्ताअत और फरमा बरदारी करते हुए करो, और जो आमाल करने के हैं उसे बजा लाओ, और जिससे रुकने का है उससे रुक जाओ। बस इतना ही है। और ये 60 70 साल 80 साल जिसको जितनी जिंदगी मिली है, इतनी छोटी सी जिंदगी में एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है। इस आजमाइश में अगर इंसान ने अल्लाह की अपने रब चाही जिंदगी अगर गुजार लिया तो फिर उसको क़यामत में मन चाही जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, और ये जहन्नम की जो हौलनाकियां हैं उससे बचा लिया जाएगा। लेकिन जब उसने इस दुनिया की जिंदगी में अपनी मनचाही जिंदगी गुजारा और क़यामत के बारे में भरोसा नहीं रखा, यकीन नहीं रखा, और नबी पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, तो फिर कल क़यामत में जब अजाब को देख लेगा, वहां पर चाहेगा कि दुनिया की हर चीज कुर्बान कर दें इस अजाब से बच सके, लेकिन वो नहीं बच सकेगा। और वहां पर होगा क्या कि चलो अजाब भी जो सो चंद महीनों के लिए या चंद दिनों के लिए या चंद सालों के लिए है, उसके बाद तो चलो छुटकारा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो 60 70 साल 80 साल की जिंदगी गुजारने के बाद मौत आ गई थी, लेकिन क्या क़यामत में भी ऐसा होगा? हरगिज़ नहीं। बल्कि वहां पर तो अल्लाह ताला मौत को भी मौत दे देगा, और उसके बाद ऐलान होगा, ए जहन्नमियों, अब तुम्हारे लिए कोई मौत नहीं है, तुम जहन्नमी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में हो। और उसी तरीके से जन्नतियों को अल्लाह ताला खुशखबरी देगा, ए जन्नतियों, अब तुम पर कोई मौत नहीं है, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है। तो ऐसी जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसमें क्या कोई इंसान चाहेगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहे? नहीं चाहेगा। और वहां पर जब हकीकत को देखेगा तो दुनिया की हर चीज कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आज दुनिया में बिन बिन देखे कुरान की इन आयतों पर हम ईमान लाते हुए उन अजाब में जहन्नम में जाने वाले चीज़ों से बचते रहें, और अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करें, नबी की इताअत और फर्मा बरदारी करें, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत ही आसानी के साथ हमको जन्नतों में दाखिल करेगा। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा लतग़ा, बेशक वो तो दहकती हुई आग है, नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, झुलस देगी खालों को, यानी भून देगी खालों को। तदउ मन अदबरा, वो बुलाएगी उनको जो के पीठ फेर लेती है, वो तवल्ला, और मुंह फेर लेते हैं। यानी वो आवाज देगी या बुलाएगी, जहन्नम आवाज देगी और बुलाएगी उन लोगों को जो कि पीठ फेर लेते हैं और मुंह फेर लेते हैं। वो जमा फ़अवा, उसने जमा किया, माल को जमा किया, फिर उसे बांधे रखा। यानी वो जहन्नमी का कसूर क्या है? उनके कुछ कसूर यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं कि वो दुनिया में माल जमा करता था और उसको रोक रोक के रखता था। इन्नल इंसाना खुलुक़ा हलुआ, बेशक इंसान को पैदा किया गया है बहुत ही बेसब्रा।
इज़ा मस्सहु शर्रु, जब उसे पहुंचती है कोई परेशानी, कोई तकलीफ, जजुआ, घबरा जाता है और जजा फजा करने लगता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु, और जब उसे पहुंचता है कोई खैर, मनुआ, बुखल करने लग जाता है। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के। तो इससे पहले की चंद आयतों में अल्लाह ताला गुनहगारों का और बुरे लोगों का सिफत बयान कर रहे हैं कि वो जो माल को जमा करता है और खर्च नहीं करता है, यानी अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह ताला ने जिन जिन पर खर्च करने का हुक्म दिया है उन पर खर्च नहीं करता। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान को यकीनन बहुत ही जो सो बेसब्रा बनाकर पैदा किया है। जब उससे कोई तकलीफ और मुसीबत आती है तो वो घबरा जाता है और जजा और फजा करने लगता है, और जब उसे कोई खैर और भलाई पहुंचती है तो बुखल करने लग जाता है, सिवाय मुसल्लियों के, यानी सिवाय नेक लोगों के। तो पता क्या चला कि इंसान के फितरत में ये चीजें हैं, लेकिन इंसान को उनसे बचने की जरूरत है। यानी जब कोई मुसीबत, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान को पैदा किया गया है बहुत ही बेसब्रा, तो इंसान की फितरत में ये बेसब्रापन है। लेकिन अब इंसान को चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमारे अंदर ये अल्लाह ने कह दिया कि इंसान की फितरत में ये चीज है, तो उससे बचते रहना है और सब्र का मुजाहरा करना है। और सब्र किस पर? अगर कोई मुसीबत आ गई उस पर भी सब्र, और अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करने में जो कुछ मुश्किलें तकलीफ आती हैं उस पर भी सब्र। और जब कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आए, तो उस पर सब्र करना है, ना कि जो सो जजा और फजा करना है। और जब कोई खैर और भलाई मिलती है तो उस पर शुक्र अदा करना है, ना कि तकब्बुर करे या तो बुखल करे। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिवाय मुसल्लीन के, यानी सिवाय उन लोगों के जो नमाजें अदा करते हैं, यानी जो सच्चे और पक्के मोमिन होते हैं, उन लोगों के अंदर तो ये खामी नहीं होगी, उसके अलावा के लोगों के अंदर ये ऐब होगा। तो अब फिर मुसल्लीन की जो तारीफ है वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के, अल्लज़ीना, वो लोग जो कि हुम अला सलातिहिम, जो कि अपने नमाजों पर दाइमून, पाबंदी करते हैं, हमेशगी इख्तियार करते हैं। यानी वो नमाजी जो अपने नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों में हमेशा पाबंद रहते हैं। मतलब क्या है? नमाजें पढ़ते हैं उनके औकात पर और मुसलसल, और ये नहीं कि एक नमाज पढ़ा दूसरी छोड़ दिया, एक आध नमाज पढ़ लिया, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, जुम्मे को जुम्मा पढ़ा, या इस तरीके से नहीं। पूरे के पूरे 5 वक्त की जो फर्ज नमाजें हैं उनको बाजमात एहतमाम के साथ, पूरे उनके अपने औकात में, पूरे तरीके से, पूरी उसके जो लवाजिमात हैं उनके साथ नमाजों को अदा करते हैं। तो वो लोग जो कि अपने नमाजों की पाबंदी करते हैं, तो ये एक उनकी खास सिफत बयान की गई है। वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम, वो लोग जो कि जिनके मालों में हक़्क़ुम मालूम, उनके लिए उनके पास एक मुक़र्रर हक़ है, लिस्साइली वल महरूम, मांगने वालों के लिए भी और ना मांगने वालों के लिए भी। देखें, वो नमाजी जो कि अपने नमाजों की हिफाजत करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, और उनके मालों में एक मुक़र्रर हक़ है उन लोगों के लिए जो मांगते हैं, फ़कीर और मोहताज और जो लोग हैं वो भी, और जो लोग गरीब और मिस्कीन तो है लेकिन मांगते नहीं। यानी उनके पास जब अल्लाह ने उनको माल दे रखा है तो उस माल में से वो उन लोगों का भी हक निकालते हैं, जो सवाल करते हैं उनका भी, और जो सवाल नहीं करते हैं उनका भी। वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना, और वो जो कि तस्दीक करते हैं, सच मानते हैं, बियौमिद्दीन, बदले के दिन को, यानी क़यामत के दिन पर वो ईमान रखते हैं। यानी सच मानना मतलब क्या है? उस पर ईमान रखना। अगरचे कि हम ज़बान से दावा कर लेते हैं कि क़यामत का दिन है, हिसाब किताब का दिन है, लेकिन क्या इसको हम वाक़ई सच मान रहे हैं? क्या इसकी तस्दीक कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसकी झलक हमारे आमाल में नजर आती है। क्यों? कि अगर दुनिया में इंसान बुराइयों से नहीं रुक रहा है, गुनाहों से नहीं रुक रहा है, इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि उसको आखिरत पर यकीन नहीं है, या उसका आखिरत पर ईमान कमजोर है। क्योंकि जितना उसका ईमान आखिरत पर मजबूत होगा तो फिर वो उतना ही ज्यादा गुनाहों से बचता रहेगा, और उतना ही ज्यादा वो नेकियों की तरफ जल्दी करते रहेगा। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम, जो कि अपने रब के अजाब से
मुशफ़िक़ीन, डरते रहते हैं। देखें उनकी सिफत क्या है कि वो नमाजी भी है और अपने माल में गरीबों और मिस्किनों का हिस्सा भी निकालते हैं और आखिरत पर यकीन भी रखते हैं। उसके बावजूद भी वो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं। मतलब ये है कि नेकियां करने के बाद तकब्बुर और गुरूर में नहीं आ जाते, बल्कि फिर भी डरते रहते हैं कि कहीं हमारा रब हमको गिरफ्त में ना न ले, कहीं हमारे रब का अजाब हम पर वाक़ ना हो जाए। क्यों कि आमाल तो किया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो कबूल भी हो रहे हैं कि नहीं है। हो सकता है हमारे दूसरे बुराइयां हमारे उन नेक अमाल को ख़त्म कर रहे हों। तो इसलिए नेकी करने के बावजूद अल्लाह से डरते रहना और अल्लाह से दुआ मांगते रहना कि अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल करे और अपने फजल से हमें जन्नत में दाखिल करे। तो ये इंसान की, नेक इंसान की सिफत है कि वो खौफ और उम्मीद दोनों के दरमियान में जीता है। यानी अल्लाह से इंतहा से ज़्यादा उम्मीद कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा, मुझे माफ़ करेगा और मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, और उसी तरीके से इंतहा से ज़्यादा डर कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मेरी गिरफ्त कर ले, मेरी पकड़ कर ले, तो फिर मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये नेक लोगों की सिफत है कि नेकियां करने के बावजूद भी अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं। इन्ना अजाब रब्बिहिम, बेशक उनके रब का अजाब गैर मामून, नहीं है उससे निडर होने की चीज़। यानी वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे बच सके या जिससे निडर हो जाए या जिससे मुतमईन हो जाए। यानी तेरे रब का अजाब, जैसे दूसरे जगह पे कहा गया, है ही डरने वाली चीज़। तो वो उनके रब का अजाब ऐसा है कि उससे निडर नहीं हो सकता इंसान, और कोई भी जो सो बेखौफ नहीं हो सकता है। हर इंसान को उसका खौफ लाहक होना लाजिम और ज़रूरी है। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि हुम लिफुरूजिहिम, जो कि अपने शर्मगाहों की हाफिजून, हिफाजत करने वाले हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपने बीवियों के, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या फिर वो जो उनके दाएं हाथ जिनके मालिक हुए, यानी उनके बांदियां और जिनके कनीज जो कहा जाता है। फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, बस ऐसे ही लोग, उनके ऊपर कोई मलामत नहीं है। यानी वो लोग जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और अपने बांदी या लौंडियों के, वो ऐसे तो उनके ऊपर तो कोई मलामत नहीं है। तो उस ज़माने में जब ख़ास तौर पे ग़ुलामों को ख़रीदा और बेचा जाता था, उस ज़माने में और जो औरत ग़ुलाम होते थे जिसको बांदी या लौंडी कहा जाता, वो, या फिर जो जंग मुसलमान जो सो कुफ़ार के ख़िलाफ़ जब जंग करते हैं और जंग में कुफ़ार की औरतें जो मुसलमानों के हाथ लगती हैं, वो भी जो सो बांदी और गुलाम बनाई जाती हैं। तो ऐसी औरतें या फिर उनकी बीवियां, उनके साथ तो अगर वो हम बिस्तरी करते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर तो कोई मलामत नहीं है। इसके अलावा अगर वो अपनी शर्मगाहों को कहीं और हराम जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी गुनहगार होंगे। फमन इब्तिगा वरा ज़ालिका, फिर जो कोई चाहेगा इसके अलावा, फ़उलाइका, बस वही लोग हैं, हुमुल आदून, जो कि हद से बढ़ने वाले हैं। तो ये है नेक लोगों की सिफतें। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कि अपनी बीवियों और अपने लौंडियों के अलावा किसी और की तरफ अपनी शर्मगाह को इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जो सो अगर ऐसा करने वाले हैं, यानी इसके अलावा कहीं और पर उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो हद से बढ़ने वाले हैं। यानी हराम के मुर्तकिब होंगे तो वह हद से बढ़ जाने वाले हैं। तो जो लोग उसके खिलाफ है, इससे बचते रहते हैं, वो लोग नेक है। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि हुम लि अमानातिहिम, जो कि अपने अमानतों के, व अहदीहिम, और अपने अहद व पैमान के, राउन, रियायत करने वाले हैं। यानी उन नेक लोगों का सिफत क्या है कि जो कुछ उनके पास अमानतें रखी जाती हैं उसका अमानतदारी रखते हैं, और जो कुछ अहद व पैमान करते हैं उसकी भी जो सो वो उसका रियायत करते हैं। मतलब क्या है कि अमानत सिर्फ ये नहीं है जो हम आम तौर पे समझते हैं कि किसी ने हमारे पास कोई सोना या कोई माल कुछ रखा तो ये अमानत है, ये भी अमानत है। उसके अलावा किसी का राज है, वो हमारे लिए अमानत है। किसी दो लोगों के बीच में अगर आपने कोई उनके बीच सुलह कराई थी, तो उनकी जो
آپ کے پاس جو راز کی باتیں اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اور اسی طریقے سے عہد و پیمان، وہ جو لکھے پڑھائی ہوتی ہے وہ بھی، اور جو نکاح ہوتا ہے یہ بھی ایک عہد و پیمان ہے۔ اسی طریقے سے اور جو ذمہ داریاں جو انسانوں کے پر عائد ہوتی ہیں وہ سب عہد و پیمان میں آتی ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔